નામ પટેલ દેવેન્દ્રભાઈ ઈશ્વરલાલ છે. મારું વતન વ્યારા ડિસ્ટ્રિક્ટ તાપી છે. હાલમાં મારી સર્વિસ એઝ અ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે વલસાડ ખાતે છે. છેલ્લા 1 માસ પહેલા મને થોડી શરીરમાં નબળાઈ આવી હતી. મને ડાયાબિટીસ 350 થઈ ગયો હતો. મને લખવા માટે, મારી સહીઓ કરવા માટે થોડી તકલીફ પડી હતી. ઉપરાંત ચાલવામાં થોડી પરેશાની થતી હતી. એટલે 4 જૂનના રોજ મને થયું કે મને ઘણી તકલીફ વધી રહી છે. એટલે છેલ્લે મેં INS હોસ્પિટલ સુરત ખાતે ન્યુરોસર્જનને બતાવ્યું. ટેસ્ટ લઈ એમને ત્યાંથી એવો ઓપિનિયન આવ્યો કે તમારે સર્જરી કરાવવી પડશે, સ્પાઇનની સર્જરી કરાવવી પડશે. સર્જરીની વાત આવી તો થોડું મને આંચકો લાગ્યો કે લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ સર્જરી કરાવવાની છે. એટલે મારા મિત્ર વર્તુળ દ્વારા ડૉક્ટર કેડા સાહેબ, જે મારા મિત્ર છે, એમના થ્રુ ડૉક્ટર ગૌરવ ખંડેલવાલ સાહેબને ઓપિનિયન લેવાનું જણાવ્યું. 5મી જૂનના રોજ સાંજે 5 કલાકે ડૉક્ટર ગૌરવ ખંડેલવાલ સાહેબને વિઝિટ લીધી. સાહેબે મને ફિઝિકલી તપાસીને તરત જ એમનો ઓપિનિયન આવ્યો કે તમને સર્જરી કરાવવી પડશે અને ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે સાહેબે તો ખાલી ફિઝિકલ તપાસ કરીને સીધું જણાવ્યું કે સર્જરી કરવી પડશે. ત્યારબાદ અમે બધા રિપોર્ટો બતાવ્યા અને સાહેબને જણાવ્યું કે હું કાલે જ દાખલ થઈને ટ્રીટમેન્ટ લઈ લઉં, કે સર્જરી કરી લઈએ. પણ સાહેબે 2 દિવસ બાદ જણાવ્યું અને સોમવારે હું સેલ્બી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો. દાખલ કરીને એમની ટ્રીટમેન્ટ મુજબ બુધવારે સવારે સર્જરી મારી થઈ. સવારે 8 કલાકે મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા અને 12:10 ઓપરેશન થિયેટરમાંથી મને ICUમાં લઈ ગયા. ડૉક્ટર સાહેબના શબ્દો અને મારા મિત્ર વર્તુળ કે ફેમિલી મેમ્બર થ્રુ ઓપરેશન સક્સેસ ગયાનું જણાવ્યું. ત્યારબાદ મને સ્પેશિયલ રૂમમાં લઈ ગયા અને ત્યાં મારી ટ્રીટમેન્ટ રેગ્યુલર ચાલુ થઈ. સેલ્બી હોસ્પિટલના દરેક ડૉક્ટર મિત્રો, સિસ્ટર્સ, વોર્ડ બોય યા દરેક કર્મચારીએ ખૂબ સરસ તેમની મારી ટ્રીટમેન્ટ કરી. ખાસ કરીને ખંડેલવાલ સાહેબની ટીમે જે ટાઈમ ટુ ટાઈમ મને ટ્રીટમેન્ટ આપી એનાથી હું ઘણો સારો થયો. મારે તબિયતમાં ઘણો સુધારો થયો. ત્યારબાદ મને 10 દિવસ પછી રજા આપવામાં આવી. આજે તમારી સમક્ષ આજના દિવસે સ્ટીચીસ મારા કાઢી નાખ્યા છે અને હું સેલ્ફ ચાલી શકું છું. મારા શરીરમાં ઘણી બધી હું માનું છું ત્યાં સુધી 40% મને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી ગયું એવું લાગે છે. અને આવતા 30 દિવસની અંદર હું રેગ્યુલર ચાલી નીકળીશ, ચાલતો થઈ જઈશ. ખાસ કરીને મારે એ જ જણાવવું છે કે ખંડેલવાલ સાહેબના નેચર અને એમની જે કામ કરવાની આવડત છે ખરેખર કાબિલે તારીફ છે. સેલ્યુટ खंडेलवाल साहब. ओके, थैंक यू. तो जब पहली बार हमने इनको इमरजेंसी में देखा था तो ऑलरेडी चारों हाथ पैर कमजोर हो गए थे, पेशाब नहीं कर पा रहे थे और संडास भी अटकना शुरू हो गई थी, जिसको कोई भी अगर एवरेज डॉक्टर भी देखेगा समझ जाएगा कि नस इतनी डैमेज हो गई है कि हाथ पैर की नस और पेशाब संडास की नस भी अभी काम नहीं कर रही है. तो ये सीरियस प्रॉब्लम है और जितना ये ट्रीटमेंट में लेट करते उतना जितना हाथ पैर चल रहे थे वो भी चलना पूरा बंद हो जाता. तो ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में ही वो आए थे. MRI स्कैन में अगर देखते तो
2 नंबर से लेके 7 नंबर के जो गर्दन के मणके हैं वहां पर OPLL, ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कैल्शियम जैसा डिपोजिशन होकर वहां पे नस की जगह इतनी छोटी हो जाती है, उस पे नस पे इतना दबाव हो जाता है कि फिर वहां से नीचे की नस कोई काम नहीं कर सकती। तो वो उनका धीरे धीरे बढ़कर इतना बढ़ गया था कि पूरी हाथ पैर की नस, पेशाब की नस, संडास की नस काम नहीं कर रही थी। अगर कुछ दिन और रुकते तो वो जितना काम कर रही थी बंद हो जाती। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे जब नस पे दबाव बढ़ता है तब इतनी छोटी जगह बच जाती है कि अगर उसको ऑपरेशन से फ्री भी करते हैं तो पूरे हाथ पैर पैरालाइज होने का रिस्क रहता है। तो इससे पहले भी अगर इन्हें किसी को दिखाया होगा तो इस बात से हमेशा पेशेंट्स और डॉक्टर्स डरते ही हैं कि ऐसे ऑपरेशंस में पूरा पैरालाइज हो जाने का रिस्क रहता है। तो इसके कारण तकलीफ भी एक तरफ बढ़ रही है और अगर हम रिस्क ना लें तो वैसे भी पैरालाइज होने वाला है, और ऑपरेशन करते समय भी अगर ठीक से ऑपरेशन ना हो तो पैरालिसिस का रिस्क रहता है। और गर्दन से नीचे पैरालिसिस मतलब वो परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। तो ये काफी क्रिटिकल सर्जरी है। पर अच्छी बात यह है कि अभी सर्जरी के टेक्निक्स में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि हमारे पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। तो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में एक दूरबीन होती है, दूरबीन में देखकर ऑपरेशन करते हैं, तो पहले की तरह इंजरी होने का चांस काफी कम रहता है। इसके साथ में हम न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं, तो हमको पता होता है कि कब नस को कितनी इंजरी हो रही है, तो इससे सर्जरी काफी सेफली हम कर सकते हैं। तो ऑल्दो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है कोई भी सर्जरी में, बट उनको रिस्क सब समझाने के बाद फॉर्चुनेटली वो सीरियसनेस बात की समझ गए और हम टाइम पे ऑपरेशन कर पाए। तो यूजुअली इतना बड़ा OPLL C2 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की उनकी गर्दन में नस दबी हुई थी, वो यूजुअली इंडियंस में इतना कॉमन नहीं है। यूजुअली जापान और ऐसी कंट्रीज में काफी कॉमन होता है, पर अनफॉर्चुनेटली इनको वो था और काफी सीवियर कंप्रेशन था। इनफैक्ट पहले वाले MRI स्कैन में उनकी नस जो नॉर्मली 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम, वो दब के अराउंड 2 मिलीमीटर ही रह गई थी कहीं कहीं पे। तो वो बहुत ही ज्यादा दबी हुई थी और इसलिए उसमें रिस्क था। बट अगर हम नहीं करते तो वैसे भी वो पैरालाइज होने वाले थे। तो प्रॉपर टेक्निक से करने के वजह से, और फॉर्चुनेटली उन्होंने भी कोऑपरेट बहुत अच्छे से किया और सब ऑपरेशन ठीक से हो गया। और उसके बाद से बहुत ही अच्छा उनका रिकवरी, एक तो उनका मोटिवेशन पहले से बहुत अच्छा रहा है, तो जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने अच्छे से फॉलो किए और उनकी रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई है बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के। सो दैट इज अ गुड थिंग। अभी कोविड के कारण हालांकि काफी लोग परेशान हैं, फिर भी शैल्बी हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल है। कोविड का ट्रीटमेंट भी हो रहा है एक पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल में, बट दूसरा पार्ट जो उससे कम्प्लीटली अलग है वहां पे नॉर्मल पेशेंट्स का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्मल सारे ऑपरेशंस अभी हो रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, जहां मैं आपको एक नंबर बताता हूं, वहां से कंसल्टेशन आप कर पाएंगे। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 95126, आई विल रिपीट 95126 60096 60096। सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करा सकते हैं। मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल शैल्बी हॉस्पिटल में सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पर अभी फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ, मतलब मंडे टू सैटरडे। अभी ओपीडी टाइमिंग्स मॉर्निंग में 11 to 1 और यूजुअली इवनिंग में 5 to 7 रहते हैं। कोविड के कारण वो शायद अलग हो सकते हैं, पर आप अपॉइंटमेंट पहले लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।